السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ صدر جمہوریہ درپدی مرمو کا جنوبی ہند دورہ مکمل ہوا اور وہ آج شام حیدرآباد سے دہلی کے لیے روانہ ہوئی۔ ریاست تلنگانہ کی جانب سے سرکاری دواخانوں میں دایا کی مدد سے زچگی کی یونیسیف انڈیا نے ستائش کی ہے۔ تلنگانہ میں بجلی کی مانگ 14,000 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ٹرانسکو اور جینکو کو ہدایت دی ہے کہ وہ یاسنگی سیزن کے دوران درکار 15,500 میگا واٹ بجلی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے تیاری کریں۔ حیدرآباد میٹرو ریل کی جانب سے 9:30 جشن کے ضمن میں کل رات دیر تک ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ 1 جنوری کو آخری ٹرین رات 1 بجے سے شروع ہوگی اور تقریباً 2 بجے اپنی منزل پر پہنچے گی۔ تلنگانہ اقلیتی رہائشی اسکولز میں نئی پہل، 1,30,000 سے زیادہ طلباء کے لیے ذہنی صحت کا پروگرام ہوگا شروع۔ ٹمریز تلنگانہ اقلیتی رہائشی اسکولز نے ریاست کے 200 سے زائد اسکولوں اور کالجوں کے 1,03,000 سے زیادہ 30,000 سے زیادہ طلباء کے لیے ذہنی صحت کا پروگرام شروع کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس سلسلے میں ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، جو کہ طبی دیکھ بھال کرنے والی NGO ہے، تاکہ صلاحیت کو بڑھانے اور اس کی ہیلپ لائن خدمات کو چلانے میں مدد ملے۔ جمعرات کو ذہنی صحت سے متعلق آگاہی کا پوسٹر جاری کرتے ہوئے ٹمریز کے سیکرٹری اور IFSB شفیع اللہ نے کہا کہ تلنگانہ اقلیتی رہائشی اسکولز کی طرف سے ذہنی صحت کی بہتری کے کووڈ-19 کے پہلے منظم پروگراموں میں سے ایک ہے۔ عالمی وبا کورونا وائرس بعد تمام عمر کے گروپوں کی ذہنی صحت کا متاثر کیا ہے۔ IFSB شفیع اللہ نے کہا کہ امتحانات سے پیدا ہونے والا تناؤ، کارکردگی کے بارے میں اضطراب، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی، خودکشی کا رجحان اور ذاتی رویے کے مسائل اسکول کے بچوں میں عام طور پر سامنے آتے ہیں۔ ذہنی صحت کے پروگرام کی کلیدی اجزاء سب سے پہلے صلاحیت کو بڑھانا، ایک ہیلپ لائن قائم کرنا، ہر اسکول میں تجویز خانہ فراہم کرنا اور مسلسل بنیادوں پر براہ راست مہارت کے سیشن کا انعقاد کرنا ہے۔ کمرے عدالت میں قصوروار نے خاتون ایڈیشنل ضلع جج پر کیا پتھر سے حملہ۔ گجرات کے نوساری میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج پر جمعہ کو کمرے عدالت میں ایک معاملے کی سماعت کے دوران ایک ملزم نے پتھر سے حملہ کر دیا، جس میں وہ بال بچ گئی۔ اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے نوساری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ایڈوکیٹ پرتاپ سنگھ مہیدان نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ واقعہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج RR دیسائی کی عدالت میں پیش آیا۔ ملزم دھرمیش راٹھوڑ نے خاتون جج پر پتھر پھینکا، جس میں وہ بال بچ گئیں۔ ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں نے فوری طور پر ملزم کو پکڑ کر کمرے عدالت سے باہر نکال دیا۔ ملزم جیل کے احاطے سے پتھر لے کر عدالت پہنچا تھا۔ مہیدان نے کہا کہ اس ملزم کی ججوں پر حملہ کرنے کی تاریخ ہے، اس کے باوجود پولیس کی جانب سے کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے۔ گزشتہ دنوں ملزم نے جج پر جوتا پھینکا تھا۔ بار ایسوسی ایشن پولیس کے کردار کی انکوائری کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ملزم کو عدالت میں پیش کرنے سے پہلے اس کی جسمانی تلاشی کیوں نہیں لی گئی۔ انڈونیشیا میں کووڈ سے متعلق تمام پابندیاں ہٹا دی گئیں۔ انڈونیشیائی صدر نے کہا کہ کووڈ-19 وبائی مرض کنٹرول میں ہے اور 27 دسمبر تک فی 10 لاکھ افراد میں روزانہ 1.7 معاملے ریکارڈ کیے گئے تھے۔ چنانچہ حکام نے عوامی سرگرمیوں پر تمام پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو وڈوڈو نے جمعے کو ملک میں کووڈ-19 کی وجہ سے عائد عوامی سرگرمیوں پر تمام پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا۔ وڈوڈو نے صدر کے دفتر سے نشر ہونے والی لائیو سٹریم کے دوران کہا کہ گزشتہ چند مہینوں سے کووڈ-19 وبائی مرض کنٹرول میں ہے اور 27 دسمبر تک فی 10 لاکھ افراد میں روزانہ 1.7 معاملے ریکارڈ کیے گئے تھے۔ چنانچہ حکام نے عوامی سرگرمیوں پر تمام پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ انڈونیشیا نے 13 اپریل 2020 کو کووڈ-19 کو قومی آفت قرار دیا تھا اور متعدد سماجی پابندیاں عائد کی، جن میں بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے لازمی قرنطینہ بھی شامل ہے۔ انڈونیشیا میں مجموعی طور پر 60,70,000 سے زائد افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور 1,60,583 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ BJP KCR حکومت کے خلاف چارج شیٹ جاری کرے گی۔ BJP پارلیمنٹری بورڈ کے رکن و راجیہ سبھا MP ڈاکٹر کے لکشمن نے جمعہ کے روز کہا کہ ان کی پارٹی چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی زیر قیادت BRS حکومت کے خلاف چارج شیٹ پیش کرے گی۔ BJP کی ریاست ہیڈ کوارٹر میں اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر کے لکشمن نے کہا کہ ایک عوامی جلسے میں یہ چارج شیٹ جاری کی جائے گی۔
ये अवामी जलसा रियासत में अप्रैल में मुनाकिद होगा। इस मुजव्वदा जलसे में पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 90 असम्बली नशिस्तों और मुल्क भर में लोकसभा के 400 हल्कों से कामयाबी के हुसूल के लिए बीजेपी रोड मैप तैयार कर रही है। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के रुकन ने मजीद कहा कि इनकी पार्टी KCR हटाओ तेलंगाना बचाओ के नारे के साथ अवाम से रुजू होगी। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि रियासत में इख्तिदार पर आने के बाद बीजेपी रियासत के तमाम अवाम को मुफ्त तालीम और इलाज की सहूलतें फराहम करेगी। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में हर एक असम्बली हल्के से पार्टी टिकट के लिए 4 उम्मीदवार दावेदार हैं। पार्टी टिकट के लिए 4 उम्मीदवारों में सख्त मुसाबिकत है। बीजेपी इन 160 लोकसभा हल्कों पर भरपूर तवज्जो देगी जहां से साबिक में से नाकामी का सामना करना पड़ा। रियासत तेलंगाना की जानिब से सरकारी दवाखानों में दाया के जरिए बच्चों के फितरी तौर पर पैदाइश की यूनिसेफ इंडिया ने सिताइश की। यूनिसेफ ने ट्विटर पर एक मां और नवजायद बच्चे की तस्वीर शेयर की जो कि हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में दाया की मदद से जचगी हुई है। यूनिसेफ ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान में दाया के पेशे की हौसला अफजाई करने में रियासत तेलंगाना पेश है और माओं के लिए बच्चों की पैदाइश के मुस्बित तजुर्बा और जच्चा बच्चे की निगहदाश्त के लिए काम कर रही है। कपास की मुनासिब कीमत का मुतालबा करते हुए किसान तंजीमों ने आसिफाबाद जिले हेडक्वार्टर पर एक बड़ी रैली निकाली। किसानों ने मेन रोड पर धरना दिया और रास्ता रोको एहतजाज किया, जिसकी वजह से तकरीबन 1 किलोमीटर तक ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हुई। बाद में एहतजाजियों ने जिले कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया और कपास की फसल के लिए मुनासिब दामों की फराहमी को यकीनी बनाने की अपील की। అది కొద్దిగా మనం అటు పెట్టుబడులు పెంచిన కొద్దీ దాన్ని తగ్గించుకుంటా ఈ రోజు మన దగ్గరికి పత్తి వచ్చే వరకు పత్తి తీసి మన ఇంట్లో పడేసరికి దాన్ని సగం రేటుకు 7,500కు కొనుగోలు చేస్తూ మనల్ని మోసం చేస్తుంటే ప్రభుత్వాలు చూసి చూడనట్టు ఈ రోజు దళారుల రాజ్యం వెళ్తుంది తప్పితే ఈ ప్రభుత్వాలు ఉన్నారా లేరా అనేది కూడా మా రైతాంగానికి ఇలా అర్థం కాని పరిస్థితి ఉన్నది। కాబట్టి దయచేసి ప్రభుత్వాలు దీనిపై ఖచ్చితంగా ఈ రైతులను ఆదుకునే విషయంలో ముందుకొచ్చి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా శిశు ద్వారా ఈ రోజు మనం చేసినటువంటి పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి ఈ పత్తికి మద్దతు ధర కల్పించాలంటే కనీసం 12,000 ఉండాలి। ఏదో खम्मम पुलिस कमिश्नर विष्णु एस वारियर का कहना है कि अमन और ज़ब्त की बरकरारी के लिए महकमा पुलिस अनथक मेहनत कर रहा है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट की सालाना रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के मुकाबले रवां साल जराइम की शरह में 4% इजाफा हुआ। साइबर जराइम 52% बढ़े, साथ ही रिकवरी रेट का भी यही फीसद रहा। उन्होंने मजीद कहा कि शिकायत दर्ज करवाने और लोगों को साइबर जराइम से मुतालिक शऊर बेदारी के लिए खुसूसी नंबर जारी किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि जिले में बड़े पैमाने पर CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं और आइंदा साल इसमें मजीद इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंशियात की लानत के खिलाफ भी पुलिस की मुहिम जारी है और ज़िमन में आर्ट नुमाइश भी मुनाकिद की गई। 82वां ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन साल 2023 का इफ्तिताह 1 जनवरी को होगा। इस मौके पर मेहमान खुसूसी वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली होंगे और मेहमान खुसूसी वज़ीर रोड एंड बिल्डिंग्स वी प्रशांत रेड्डी, वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव होंगे। एग्जीबिशन के सदर हरीश राव वज़ीर फाइनेंस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सदारत करेंगे। एग्जीबिशन का क़याम 1938 में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ की तरक्की के लिए किया गया था। एग्जीबिशन सोसाइटी 1956 में कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर की गई थी। पहले ये बाग़-ए-आमा में मुनाकिद की जाती थी और 1946 में इसे एग्जीबिशन ग्राउंड मुंतकिल किया गया। एग्जीबिशन सोसाइटी 1965 में सिल्वर जुबली, 1998 में गोल्डन जुबली, साल 2000 में डायमंड जुबली और साल 2015 में प्लाटिनम जुबली मना चुका है। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन से हासिल करदा आमदनी रियासत तेलंगाना में मौजूद 19 तालीमी इदारों में 30,000 तालिब इल्मों को मुफ्त तालीम के लिए खर्च की जाती है। तकरीबन हर साल 6.5 करोड़ रुपये GST टैक्स की शक्ल में हुकूमत को आमदनी होती है। एग्जीबिशन सोसाइटी के 2,000 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है और हर साल तकरीबन 10,000 लोगों को इससे रोज़गार मिलता है। एग्जीबिशन सोसाइटी की जानिब से हर साल 30,000 से ज़्यादा तालिब इल्म को मुफ्त तालीम दी जाती है और 19 तालीमी इदारे रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में चलाती है। 30 रुपये का इस बार 40 रुपये का 10 रुपये का इजाफा किया है हमने। बच्चे 5 साल के नीचे ऊपर से उनको फ्री है।
Sir, नीचे Sir, is नीचे there anything special this time? Pardon? Is there anything special this time in the exhibition? Anything special? Especially as you have seen, we have made a very good layout. We have made it very attractive. The trains have become attractive. It will be going to be dust free. It is 98% tarmac. It is roads have been laid. Everything is neat. You will find the difference once you come and visit the exhibition. We decide nahi kare, we'll decide. Sir, what about COVID, sir? Let us not talk about what is not there. I think it's better to avoid. There are apprehensions. It has to be. See, we will not talk about apprehensions. It is all on rumors. timing You know, also. if there is anything which is coming out, we are in a position to tackle it. Previously, shopholders they have sustained a huge loss because of COVID. Timings. No, as usual, whatever timing we have been followed, right, 3:30 to 10:30 in the morning hours for people to go around in the cars. From 10:30, from 11 o'clock, they'll be allowed up to 2 o'clock, and they will be charged about 600 rupees, and where 4 people will be allowed inside the car, to enhance their shopping activity. We have already compensated the loss of the stallholders. And for a kind information, Nobody is running around. Exhibition Society is the first society which has compensated any fire victim. I'm telling you. We have to get the figures right. We have compensated. Whoever has been affected, we have been compensated. Nobody is running around the office. That much I can assure Rents you. have been refunded. अब 5 साल पहले का आप कहीं को भाई रेस कर रहे हैं, 5 साल पुरानी चीज को अब उठा के क्या करते? 82 साल में पहली बार एक ही बार जो है फायर एक्सीडेंट हुआ. कहाँ पर कहीं हर जगह फायर एक्सीडेंट्स होते, तो उसमें क्या है? 5 साल पहले का फिर आज क्या जिक्र है उसका? 5 साल पहले जो रिफंड्स उनको देना था दे दिए, जो कॉम्पनसेशन देना था दे दिए. ये न्यूज बिल्कुल रॉन्ग है कि कोई स्टॉल वाला आज भी कॉम्पनसेशन के लिए फिर रहा है. ये बिल्कुल रॉन्ग है. ये नहीं साहब, वो होगा साहब, हमारे पास नहीं आया साहब. आके हमसे मिलो, बोलिए. कोई नहीं आया. अभी क्या फैसिलिटीज दिए गए सर फायर फिगर के लिए? ये क्या फरमाया? अभी क्या फैसिलिटीज है अपडेट्स कर रहे हैं सर इसके लिए? किस ताल्लुक से? फायर्स के लिए, फायर प्रोडक्शन के लिए. साहब 4 करोड़ रुपए खर्च करके जो है इतने सम्स बनाए हैं, अंडरग्राउंड सम्स है, आपके ये हाइड्रेटर्स लगाए हैं थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर. इतना जबरदस्त इंतजाम है कि पूछो लोग आप. फायर इंजन यहाँ पे लाखों रुपए फायर डिपार्टमेंट को दे के फायर इंजन खड़ा करते हैं. अब फायर इंजन का काम करना नहीं करना वो फायर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है. रियासती वज़ीर हरीश राव और निरंजन रेड्डी ने कहा कि पाम ऑयल की काश्त से हर माह आमदनी हो रही है. दोनों विज़रा ने सिद्दीपेट जिले के चंदलापुर गांव के एक पाम ऑयल नर्सरी का दौरा किया. विज़रा ने किसानों को पाम ऑयल की काश्त करने की तरगीब दी. उन्होंने कहा कि ये फसल साल में 24 मरतबा उगाई जा सकती है. उन्होंने मजीद कहा कि ज़िले में 10,000 एकड़ अराजी पर पाम ऑयल के पौधे तैयार हैं. उन्होंने ज़राई अहदेदारों को इस ताल्लुक से शऊर बेदार करने की हिदायत दी. రాష్ట్రం ఈ దేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. చాలా సందర్భాల్లో వేరే రాష్ట్రాల్లో పర్యటించినప్పుడు కూడా చెప్తుంటాం, ఇక్కడ అనేక మంది మహిళా సోదరుమణులు ఉన్నారు. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రమే మహిళలకు స్థానిక సంస్థల్లో 50% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టినాక మనల్ని చూసి అనేక రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇలా మహిళలకు రిజర్వేషన్లు ఇస్తున్న నేపథ్యాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నా. ఇవాళ వ్యవసాయ రంగం చాలా గొప్పగా అభివృద్ధి చేస్తున్న నేపథ్యంలో దానికి కావాల్సిన మౌలిక సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయడానికి ఇలా అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ కమిటీలు కూడా క్రియాశీల పాత్ర పోషించాల్సిన అవసరం ఉంది. సోదరి జ్యోతి మరి వారి పాలకవర్గం కూడా ఆ కార్యక్రమాలు చేస్తారని నేను ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ, ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్రంలో బలహీన వర్గాలకు అవకాశాలు కల్పించే సంకల్పం కొద్దే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్న నేపథ్యం ఇవాళ బలహీన వర్గాల బిడ్డలకు గురుకుల सिंगारेनी ने एक ही दिन में कोयले की पैदावार और ट्रांसपोर्टेशन का नया रिकॉर्ड कायम किया. कंपनी ने कहा कि इससे कबल 28 मई को सुबह की शिफ्ट से नाइट शिफ्ट खत्म होने तक 24 घंटों के दौरान इसने 2,46,000 टन कोयला पैदा किया था और 2,53,000 टन ट्रांसपोर्ट किया था. वर्करों ने इस महीने की 20 तारीख को 2,24,000 टन पैदावार और 2,35,000 टन ट्रांसपोर्टेशन का रिकॉर्ड तोड़ा. ग्रुप 4 के लिए दरखास्तें दाखिल करने का अमल आज से शुरू हो गया है. TSPSC 19 जनवरी शाम 5 बजे तक दरखास्तें वसूल करेगा.
ग्रुप 4 ज़मरे के तहत रियासत के 25 महकमे जात में जुमला 9,168 जायदादों को पुर किया जाएगा, जिनमें से जूनियर असिस्टेंट की 859, जूनियर अकाउंटेंट की 429, जूनियर ऑडिटर्स की 18 और वार्ड ऑफिसर 1,862 जायदादें हैं। नए साल की आमद के पेश नज़र हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने फ्लाईओवर्स, PVNR एक्सप्रेसवे और आउटर रिंग रोड पर गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कुछ तहदीदात आयद की हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक शिल्पा लेआउट, गच्चीबौली, बायोडाइवर्सिटी, एक और दे, शेखपेट, माइंड स्पेस, जुबली हिल्स रोड नंबर 45, साइबर टावर, फोम माल्स, JNTU, केतलापुर और बालानगर के फ्लाईओवर साल 9 की रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक राहगीरों और गाड़ियों के लिए बंद रहेंगी, जबकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी शब दुर्गम चेरू केबल ब्रिज भी बंद रहेगा, ताहम एयरपोर्ट जाने वाली गाड़ियों को इजाजत रहेगी। तेलंगाना गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन और वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालदा हीराबेन की देहांत पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने वजीर आजम और उनके अरकान खानदान से हमदर्दी का इजहार किया। तेलंगाना में 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात 3 अप्रैल से मुनाकिद होंगे। SSC इम्तिहानात का हतमी टाइम टेबल आइंदा दिनों जारी किया जा सकता है। इस मरतबा SSC इम्तिहान में 11 के बजाय 6 पर्चे होंगे और हर पर्चे की मुद्दत 3 घंटे रहेगी, ताहम इन इम्तिहानात में मुकम्मल निसाब शामिल रहेगा। रियासती वजीर खजाना हरीश राव ने कहा कि दुब्बाक हल्के में BRS का रुकन असम्बली नहीं है। इसके बावजूद वजीर आला के चंद्रशेखर राव इस हल्के की तरक्की के लिए इक़दामात कर रहे हैं। हरीश राव ने दुब्बाक टाउन में एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी की नई गवर्निंग बॉडी की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि दुब्बाक में बहुत जल्द डायलिसिस खिदमात फ्राहम की जाएंगी। रियासती वजीर ने कहा कि दुब्बाक में MLA BJP का हो सकता है, लेकिन लोग तो तेलंगाना के हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से 31 दिसंबर को साल नौ जश्न के मौके पर मुसाफिरीन की सहूलियत के लिए 1 जनवरी सुबह तक ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। HMRL के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि 1 जनवरी को आखिरी ट्रेन मज़कूरा स्टेशन से रात 1 बजे निकलेगी और तकरीबन 2 बजे तक अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि ट्रेन या स्टेशनों पर शराब नोशी के बाद मुसाफिरीन के साथ बदतमीजी न हो, इसको यकीनी बनाने के लिए मेट्रो रेल पुलिस और सिक्योरिटी विंग चौकस रहेंगे। सिटी कॉलेज नयापुर हैदराबाद में 4 जनवरी 2023 से सब इंस्पेक्टर्स पुलिस और पुलिस कांस्टेबल इम्तिहान की 200 उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। ऐसे उम्मीदवार जिनके वालिदैन की आमदनी सालाना 5 लाख रुपये कम हो, मुफ्त कोचिंग के लिए अहल हैं। मज़ीद तफसीलात वेबसाइट tsbcstudycircle.cgg.gov.in से हासिल की जा सकती है। हुकूमत का कहना है कि मुल्क भर में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से 134 करोड़ से ज़्यादा अफराद मुस्तफ़ीद हुए हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक 86 करोड़ से ज़्यादा इस्तफ़ादन की गैर वबाई अमराज की तशख़ीस की गई है, जिनमें तकरीबन 30 करोड़ हाइपरटेंशन, 25 करोड़ ज़ियाबतीस, 17 करोड़ ओरल कैंसर और 8 करोड़ से ज़ायद छाती के कैंसर के मरीज़ भी शामिल हैं। तेलंगाना में बिजली की मांग 14,000 मेगावाट से तजावुज़ कर गई है। रबी सीजन के इन दिनों में महकमा बिजली को 15,500 मेगावाट बिजली की सप्लाई करना है। मार्च 2022 के रबी सीजन के दौरान 14,160 मेगावाट बिजली की तलब पूरी की गई थी। अब दिसंबर के महीने में यह निशाना 14,000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने महकमा बिजली की सताइश करते हुए ट्रांसको और जेनको के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर को हिदायत दी कि वो आइंदा साल मार्च में यासंगी सीजन के दौरान दरकार 15,500 मेगावाट बिजली की तलब को पूरा करने के लिए तैयारी करे। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने DGP महेंद्र रेड्डी को तहनीत पेश की। वज़ीर दाखिला ने गुज़िश्ता 34 बरसों के दौरान महकमा पुलिस में मुख्तलिफ ओहदों पर महेंद्र रेड्डी की खिदमात को सराहा। उन्होंने DGP को एक मोमेंटो पेश किया। महकमा दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता, एडिशनल DGP जितेंद्र और संजय कुमार जैन भी इस मौके पर मौजूद थे। DGP महेंद्र रेड्डी के कल सबकदोश होने के बाद अंजनी कुमार तेलंगाना DGP का इजाफी चार्ज संभालेंगे। पुराने शहर के बारकस में तमाम सहूलतों से लेस अर्बन हेल्थ पोस्ट पर खानगी दवाखानों से अच्छा इलाज। बारकस इलाके में अर्बन हेल्थ पोस्ट है, जहां मरीजों के इलाज के लिए हर किस्म की सहूलत मौजूद है। यहाँ मरीजों का लैब टेस्ट भी मुफ्त में है। यहाँ तक के सैकड़ों मरीज हर दिन यहाँ से रुजू होते हैं। मुख्तलिफ बीमारियों के लिए जनरल चेकअप,
हामिला ख़वातीन के लिए भी चेकअप किया जाता है और इन्हें दवाएं मुफ्त दी जाती हैं, यहाँ तक कि इनके टेस्ट भी मुफ्त किए जाते हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आवाम की सहूलत और इलाज मुआलजे के लिए हर महल्ले में बस्ती दवाखाने भी खोले गए हैं और तमाम अर्बन हेल्थ पोस्ट को अपग्रेड करते हुए इतनी सहूलियत पहुँचाई गई है कि मरीजों को खानगी दवाखाने जाने की ज़रूरत नहीं। इन दवाखानों से आवाम पर इलाज के लिए पड़ रहे ज़्यादा बोझ कम हो गया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख वहीद की ये रिपोर्ट। डॉक्टर सुदीप है, मैं इधर यूपीएचसी बारकस में काम करता हूँ, मेडिकल ऑफिसर है। ये हमारा यूपीएचसी में ये एएनसी केसेस को देखते हैं और एएनसी केसेस के साथ जनरल पेशेंट्स को भी देख रहे हैं। अभी इन लोग का पूरा टेस्ट इधर फ्री में होता है और एएनसी चेकअप्स रेगुलरली हो रहे हैं। हम ये यूपीएचसी में ये गवर्नमेंट का डिलीवरीज कराने के लिए इधर मोटिवेट कर रहे हैं और इम्यूनेशन भी करा रहे हैं इधर से। अगर डिलीवरी टाइम में कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह कुछ भी रहे तो हम हायर सेंटर्स को भी रेफ़र कर रहे हैं। मेनली ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को टाइम पे ट्रीटमेंट दिलाना चाह रहे हैं और रेगुलरली टैबलेट्स दे रहे हैं, आयरन फोलिक एसिड है, कैल्शियम है, बी कॉम्प्लेक्स है। ऐसा कुछ भी है तो हम प्रायर हम भेज रहे, आशा वर्कर्स को भेज रहे, एएनएम्स को भेज रहे, रेगुलर हाउस टू हाउस विजिट्स कर रहे हैं। ये हमारा हॉस्पिटल से ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। और अपने पास कौन से बच्चों को कितने ईयर से लेके कितने मंथ से लेके कितने ईयर तक हो रहा है ट्रीटमेंट? कल छोटे बच्चे के शुरू करके ओल्ड सब एज को देख रहे हैं, सब एज ग्रुप को देख रहे हैं। अगर चाहिए तो हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी लगा रहे हैं। हमारा ये औषधि पे है, ऑनलाइन टेलीमेडिसिन है। और डिलीवरीज भी होते हैं या नहीं और कुछ? इधर नहीं होता है, ये यूपीएचसी में नहीं होता है। हम इधर सीएचसी बारकस को भेज रहे हैं और ज़्यादा अगर रिस्की है तो जीएमएच भेज रहे हैं, पीटलबुर्ज भेज रहे हैं और स्कैन्स भी टाइम पे करा रहे हैं हम। ఏరియాకి పోతే మళ్ళీ ఇక్కడ పంపిస్తున్నారు సార్। ఓకే, इनका ना मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। ये इधर हमारा ई-केवाईसी कर रहे हैं, पीएमजेएवाई न्यू इम्प्लीमेंट करे। अभी ये इसका फैसिलिटी क्या है, पहले आरोग्यश्री का 2 लाख तक ही रह रहे हैं, अभी ये पीएमजेएवाई में 5 लाख तक बेनिफिट मिल रहा है और इसके लिए हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं पेशेंटों के लिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक किधर भी आप पीएमजेएवाई कार्ड जनरेट कर रहे हैं, ये कार्ड जनरेट करने के टाइम पे अगर दूसरा हॉस्पिटल में भी गए तो इन लोग का इलाज फ्री में हो जाता है। खाली ये वाइट रेशन कार्ड चाहिए और आधार कार्ड चाहिए बस। आधार कार्ड फोन नंबर से लिंक हाँ, आधार कार्ड फोन नंबर का लिंक जो भी है उससे हो जाता है पूरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा के इंतकाल पर अल्लामा इकबाल के इन अशार के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का इज़हार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वालदा के इंतकाल पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी और उनके अरकान ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत पेश किया। ट्विटर पर इज़हार ताज़ियत करते हुए अल्लामा इकबाल के अशार को भी ट्वीट किए। खाके मरकत पर तेरी लेह के ये फरियाद आऊँगा, अब दुआए नीमे शब में किसको मैं याद आऊँगा। कुलबाए अफलास में दौलत के काशाने में मौत, दश्वदर में शहर में गुलशन में वीराने में मौत। वेस्ट जोन की टास्क फोर्स टीम ने एक पेशावर सारिक को किया गिरफ्तार। मुसद्दिक़ा तल्ला पर वेस्ट जोन की टास्क फोर्स टीम ने मीर इनायत अली अरबाज व मीर हसन अली उम्र 24 साल पेशा एसी टेक्नीशियन गोलकुंडा के रहने वाला, जिसने 2 सेल फोन छीन लिए और एक सेल फोन को चोरी का इर्तिकाब किया। बंजारा हिल्स पीएस की हदूद में इसने इंकशाफ किया कि इसने दोस्ताना कॉलोनी बंजारा हिल्स में एक मोबाइल और एमएलए कॉलोनी में दूसरा मोबाइल छीन कर एक मोबाइल फ़ोन की चोरी की और इसके कब्जे से 3 मोबाइल फ़ोन और एक्टिवा मोटरसाइकिल बगैर नंबर प्लेट और एक तलवार बरामद की। मुल्ज़िम पहले दर्ज मुज़द्दिल मुक़दमात में भी मुलविस था। क्राइम नंबर 1093/2015 बंजारा हिल्स पीएस और गोलकुंडा पीएस, क्राइम नंबर 168/2021 इंडियन आर्म्स एक्ट, और तीसरा हुमायूं नगर, क्राइम नंबर 100/2021 379/420 और लंगर हाउस पीएस, क्राइम नंबर 124/2022। मुल्ज़िम के से बरामद शुदा माल जब्त करते हुए मजीद कार्रवाई के लिए पीएस बंजारा हिल्स के हवाले कर दिया गया। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।
अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।